किन्ने पैसे तेरे को? मुर्जा कहंदा मेरे को पैसे बड़े आ गए नहीं। ओ मामा किदे लुट ले इन्ने सारे पैसे च आ गया तू। अच्छा जी, इधर मैं आया हूँ भाई की तरफ। तो ना यहाँ पे मजलिस की भी तैयारी उन्होंने कर ली, बैनर शैनर लगाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजल फजक आले मोहम्मद। तो आपका भाई उठा है, तो ये देख लें, आप बाहर देख सकते हैं धूप कितनी हो गई है। मैं उठाऊँ तो 12 बज गए। बड़ी कोशिश करता हूँ कि 8 बजे उठूँ, लेकिन नहीं, 12 बज जाते हैं। यही सोचता हूँ कि अपनी 4 घंटे घड़ी पीछे कर लूँ। फिल वक्त तो वही कपड़े पहन लिए। कपड़े मैंने प्रेस वगैरह किए थे, भी आपको दिखाता हूँ। ये ब्लैक सूट मैंने अभी प्रेस किया है। आज 6 रबी अव्वल है, आज भी एक शहादत का दिन है। और कल 7 रबी अव्वल, परसों 8 रबी अव्वल इमाम हसन अस्करी बादशाह अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। उसके बाद फिर 100 ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे वो चैलेंज व्लॉग के बारे में बात करनी थी कि कल एक और चैलेंज मिला है। कभी आप 10-12 चैलेंज व्लॉग हो चुके हैं। ये 9 रबी अव्वल गुजरता है, वो सारे स्टार्ट करते हैं डे बाय डे, वो भी करेंगे। अभी उठा हूँ, घर वालों ने बड़ी लंबी लिस्ट बना दी। बड़ा गोश्त लेके आना, दही लेके आना, वाइप्स लेके आने हैं, टमाटर, धनिया, उसके अलावा मुर्गी का गोश्त भी लेना है। उसके अलावा भी 1-2 चीज़ें और भी मैं फिर भूल गया हूँ। बचपन में तो ना जब मुझे भेजते थे, मुझे सफ़े पे लिख के दे देते थे। अब मैं लिखता तो नहीं, याद रहती, लेकिन फिर भी ना मैं अगर ज़्यादा चीज़ें हो तो व्हाट्सएप में ना ऐसे पर्सनल में रख लेता हूँ। तो अभी मैं उठता हूँ, कपड़े वही पहन लिए, तो निकलने लगा बाज़ार चीज़ें लेने। बुहा के मैंने ब्लॉग नहीं करना, गर्मी बहुत ज़्यादा। चीज़ें लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, फिर नाश्ता करते हैं, नमाज का भी टाइम हो जाना हो। उसके बाद फिर ब्लॉग को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ले जी चीज़ें ले आया, वाईफाई कर दी, लैम को साथ ले गया था। मत इसकी भी बच गई है गर्मी से, और मत मेरी भी बच गई। लैम हूँ वेला चीज़ा गिनला पूरियां है कि नहीं। आ वाइप्स फरा इधर, आ वाइप्स हो गए इधर दिखा मैनू। दूसरा हो गया पाइया गोश्त लादा ले आया, बड़ा गोश्त किलो लादा, 1.5 किलो मुर्गी, दही हो गया। ਤੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਘੁਰਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਦੈਵ ਮਗਨਾਥ ਤੇ ਦੈਵਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਖੈਰ ਦਿਨੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਨੇ ਵਾਪਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਨਰੇਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਕ ਫੜਨੇ ਜੀ ਮਾਰਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਕਿੱਕ ਮਾਰ, ਇੱਧਰ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਪੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਦੈਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਕ ਮਾਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਾਰ ਕਿੱਕ। ਇੱਧਰ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਬੋਤਲਾਂ ਤੂੰ ਗੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਬਾ ਦਾ। ਉਹ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ। ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਹੱਥ ਹੋਏ ਦੇ। ਲੋ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਦੋਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਆ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਹੱਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸਰੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਫੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਰਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣੀ। ਜੇ ਚਰਬੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੈਣ ਤੇ ਢੇਰ ਭੂਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਲਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਲੱਭਦੀ। ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਲਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। 1-2 ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਉੱਧਰ ਗੈਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੱਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਾਲੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਨੇ। ਤੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਡੇਲੀ ਐਸਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਡੇਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਬ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭਈ 1-ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੋ ਵੀ ਲਾਂਗੇ, ਨੀਂਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਘਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਮਹਿਮਾਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ, ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਪੀਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। अच्छा जी, ले है आपका भाई चाय भी बना के।
अच्छा, मैं ना आपको मज़े की बात बताता हूँ। तो चाय का आपने देखना होगा कि यार चाय कितनी पीता। मुझे ना चाय की आदत नहीं थी। यूनिवर्सिटी टाइम ना हमारे जो हॉस्टल है ना उसके बाहर एक चाय का कैफ़े होता था, ढाबा टाइप जिसे कह लें। तो वहाँ से ना मैंने चाय पीनी स्टार्ट कर दी। मेरा दोस्त था, वो मुझे लेके जाता था, यार चाय पीने चले। पीनी स्टार्ट कर दी। आस्ता आस्ता ना उस ढाबे वाले को मैंने मशवरा दिया, यार ना तुम ऐसा करो, तुम अपने लोगों के ना कप वगैरह बनाओ, और जो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर आते हैं ना, जैसे मैं हो गया, मेरे साथ दोस्त हो गया, तो उनके ना नाम वाले कप भी बना लेना। जब वो आए तो उनको उनके नाम वाले कप में चाय दे देना। ऐसे आपकी पब्लिसिटी भी होगी, आप फेमस भी हो जाएंगे, तो आपका काम भी बढ़ जाएगा। उस बंदे ने ना वैसे ही मतलब मेरी बात पे गौर किया, तो उसने कप प्रिंट वगैरह करवा लिए, कुछ वैसे करवा लिए। तो 3-4 महीने बाद इसका काम बहुत ही, जिसे हाई लेवल पे कहते हैं, वो चले गया। तो वहाँ से फिर मुझे आदत हो गई, जब तक तो वहाँ पे रहा, फिर वो मुझसे चाय के पैसे तो नहीं लेता रहा, बड़ी बड़ी इज्जत करता रहा। उसके बाद फिर समझ लें कि चाय मेरी ज़िंदगी बन गई है। तो भी चाय पीते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर देखते हैं रेस्ट करनी है, बाकी काम करने हैं। दिखाते हैं आपको फर्दर एक एक करके। लो जी, मैं नमाज पढ़ के दूजे कमरे च आया। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੁਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਕਿਦੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੂੰ? ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੈਮ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਡੋਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਗਰਟ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਓਡੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ। ਓਏ ਆ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਇੰਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਮਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਨਾ ਭਾਈ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣੀ। ਲੋ ਜੀ, ਮੁਰਜ਼ਾ ਪੈਸੇ ਭਲਾ ਕੇ 430। ਅੱਛਾ 430 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੈ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦਾ। ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ। 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਮੋਜ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਮੋਟਰਸਾइकिल सही करा आइए। उन्हीं देर मेहमाना ने भी आ जाना, फिर आते ने ब्लॉग कंटिन्यू कर। अच्छा जी, यहाँ पे ना सालन बन रहा है। मैंने सोचा आपको भी ये भी दिखाता हूँ। तो जो हमारे घर में ना मुर्गी का सालन बनता है, यहाँ पे ना पहले मुर्गी फ्राई की जाती है, उसके बाद सालन बनाया जाता है। इससे ना इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। जहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये भी फ्राई की है और ये करने वाली है। और ये बड़ा गोश्त, अगर बड़ा गोश्त दिखाऊँ तो ये भी ना पहले बॉयल किया जाता है, फिर प्रेशर कुकर में ना ये बनाते हैं हम। तो इससे फायदा तो ये होता है कि ना ये जो गोश्त होता है ना नरम हो जाता है, इसका टेस्ट अच्छा होता है। ये बनता है, मैं इसकी आपको फाइनल लुक भी दिखाता हूँ, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना है। अच्छा जी, सालन वगैरह तो बन गया, अभी ना टेस्ट वगैरह करते हैं। तो अभी ये बड़े गोश्त का सालन बन गया। मैं तो ना कम ही रोटी के साथ खाता हूँ, ये चावल के साथ। मैं तो वैसे ही 3-4 से कहते हैं ना बोटी के पीस वगैरह चम्मच से ट्राई कर लेता हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ ये कैसा बना है। जबरदस्त जायका इसका यार। हम ना मिर्च मसाला थोड़ा कम रखते हैं, तो बड़ा अच्छा टेस्ट बना है। मेरी ये रेसिपी है जो मैंने घर में बताई थी। मैंने भी ना यूट्यूब में सोशल मीडिया वगैरह से देखता हूँ, तो शेयर कर देता हूँ। अब ऐसा नहीं तो ऐसा बना दें। ये खाते हैं, फिर दूसरा खाना भी बनता है, वो भी आपको दिखाते हैं। उधर न्याज भी बन रही, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, इधर मैं आया हूँ भाई की तरफ। तो ना यहाँ पे मजलिस की भी तैयारी उन्होंने कर ली, बैनर शैनर लगाए, सेन में किया सारा, ये टेबल कुर्सी। तो अगर मैं दिखाऊँ, इधर हमारा लिटिल हाथी भी है, एक लाइट वो भी लगी हुई है। तो ये 2 लाइटें इसलिए लगाई कि औरतों ने यहाँ पे बैठ के ना सालन खाना, तो ध्यान से खा ले, गिराए ना अपने ऊपर सालन, कपड़े ना खराब कर ले। तो लाइटें लगाने का मकसद ये है। लेकिन ये फ्रंट पे भी लाइट लगी हुई है, तो बाकी इसलिए लाइटें लगाई। सालन भी बन गया, मैं आपको दिखाता हूँ। सालन ना एक हमारी भाभी इन्होंने बनाया, उनके हाथ में बड़ा टेस्ट है। लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं कि सालन बना के हमें दें। तो चलता हूँ मैं किचन की तरफ। ये जी हैं, तो आपको दिखाता हूँ। ओए होए, उठाते ही ये खुशबू। और ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये मुझे लगता है मक्खन भी डाला हुआ यहाँ। तो ये ना सालन है, माशाल्लाह न्याज है। अभी ये भी टेस्ट वगैरह करता है आपका भाई। मैं ज़रा एक छोटा सा काम है वो करके आऊँ, आगे ये टेस्ट करता हूँ। जी मुंतजर भाई, कैसा बना है सालन यार? आप टेस्ट कर रहे हैं? अच्छा, मज़ेदार काफ़ी ज़्यादा बना है, पसंद आया आपको? जी ये मुंतजर भाई भी कह रहा है यार, मैंने तो ये सालन थोड़ा सा लिया है, ये एक रोटी है। तो ये जी न्याज का सालन है, तो एक ही रोटी है। यहाँ पे मैं ये खाने लगा हूँ, तो यहीं पे मैं ब्लॉग एंड करता हूँ। मसरूफियात और है, कभी यहाँ रात होते 3-4 बात जाने, लेकिन वो मैं ऐड नहीं करना चाहता। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।